यथ मज नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़ LG मनोज सिन्हा वजीर आला उमर अब्दुल्ला वजीर तालीम सकीना यतू तो यूनिवर्सिटी हिंदो जिम्मेदारों तो तलब इल्मों शिरकत कर आत मौके पे डिग्री मुकम्मल करने वाले तलब इल्मन हिंज हौसला अफजाई करना आई तज नायब सदर हिंदन वोनमुत माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी चे कम वक्तस मज सु मुकाम हासिल कर्मुत यम सती यूनिवर्सिटी मुल्क चन थजपाई यूनिवर्सिटियन मज गंजरान छे यवान Painting by renowned artist Shri K.K. Gandhi. In 2019, a big change has taken place. In the sacred land of Mata Vaishno Devi, a new pilgrimage began. The journey from isolation to integration, the winds of change have brought peace and progress. For the first time, the region experienced true national integration. There was a demand by a great son of the soil. एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान. That is accomplished. And more will happen, I'm sure about it. Disturbance has yielded to order. Where we witness disorder as the normal order, we now have the real order. Jammu and Kashmir witnessed the highest voter turnout in 35 years. During 2024 Lok Sabha polls, and just take note of it, with a 30-point increase in Kashmir Valley participation, democracy has found its real voice, its real resonance. A convocation is not just about receiving degrees. It is a milestone that marks years of hard work, resilience, and dreams turned into reality. Graduates, today as you sit here, adorned in your convocation robes, you are not just individuals earning degrees. You are torchbearers of knowledge, perseverance, and dedication. You have faced challenges, sleepless nights, and moments of doubt. But despite it all, you emerged victorious. Today is a testament to your spirit and determination. Congratulations. Let's also take a moment to acknowledge those who made this journey possible. Your parents, your teachers, your mentors, your guides, your friends, who supported and guided you. Their sacrifices and encouragement have played an integral role in shaping your success. We are privileged to be a part of an institution named after Mata Vaishno Devi, the embodiment of power, wisdom, and devotion. Her journey to the Trikuta Hills symbolizes patience, courage, and righteousness, values that each of you should carry as you step into the next phase of your life. Like Mata Vaishno Devi's unwavering faith and determination, you too will encounter obstacles and tests. But remember, success is not just about achieving milestones. It is also about how you overcome challenges, stay true to your principles, and uplift others along the way. You are entering a world that is rapidly evolving, a world of artificial intelligence, climate change, startups, and global competition. Your degree is not just a piece of paper. It is your key to making a difference. जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये मिलिटेंसी मज मुलविस मजीद 3 मुलजमन खिलाफ कार्रवाई अमन मज अन्न आई तज वजीर आला उमर अब्दुल्ला अमे हवाले कत करान वोनमुत मुलजमन गज पन कत थवन पूर मौका फराहम करने युन युत जन असल हकैक ब्रोह कुन यल जन तिमो वक्फ अमेंडमेंट बिल हवाले कत करान वोन यह कदम सिर्फ मुसलमान सहित नफरत किस बुनियाद पे तुलना आमद। अगर के इनके खिलाफ सबूत है, उन्हें सफाई देने का मौका मिला और वो सफाई नहीं दे पाए तो चलिए, लेकिन अगर बिना उन्हें सुने ये कदम लिए जा रहे हैं तो कानून तो ये कहती है कि जब तक किसी को दोषी साबित नहीं किया जाता उसको निर्दोष माना जाता है और हर किसी को अपनी सफाई में कम से कम बोलने का मौका हर किसी को
अदालत में बोलने का मौका मिलता है। यहाँ पे भी कम से कम सुनवाई हो। अगर सुनवाई के बाद वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकता, फिर जो कदम उठाने उठा लीजिए। मतलब ये कानून है ही मुसलमानों के खिलाफ, इस कानून के और पीछे और कोई वजह है ही नहीं। महकमे तालीम से वाबस्त CP वर्करों तरफ आज कोकरनागस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल CP वर्कर इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाजस में शामिल CP वर्करों तरफ वन आमुत जो महकमे तालीम मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसल अंजरावन सवाल कह कदम तुलना आमुत यमकिन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल CP वर्करों तरफ मांग करना आमुत तिहद मसल अंजरावन सवाल गन कदम तुलने इन युद्ध जन तिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। अनान और तोमुल खारन हज खार रनान दिवान कहें 1000 रुपये दिवान सह त्रावान 3 वुहर 4 वुहर 7 रुपये षटान तम गए तथ दिवान यह खेवान यह कलर ककड़ माज यह करनावान क्या पलो बच्चे फाके दिवान सुबह गसान 4 बजे त्रावान मास्टर तह यल मे मोंड मिस्किन यतीम होतान सरकार मूजूब दोप कि सरकार यी सोन सरकार सोन कर मसला हल सकीना ईदो जी महसना अत गौर खौर कर सह पन्नस लजम पत डायरेक्टर सबस अपील कर रनो मार्च पे बत वत दपान सकीना यूतु कर पे गुजारिश तमिस कर इंसाफ बे कर कंटिन्यू आर्डर बे हुर्रन तनख्वाह आज सिगरेट डब यन 2 हथन नान सुबह 9 बजे कालचन 4 बजे त्रावान शुर बोस यह गर नान 30 रुपये दिवान बे अगर गो मास्टर यह यह रोबल सह मुश्किलात कर मगर गुजारिश कर सकीना जी कर कंटिन्यू आर्डर बे हुर्रन तनख्वाह गई डिस्ट्रिक्ट तमिस वुचवार गर्द मे पच लगे मगर पे ना कह इंसाफ कर इंसाफ श्री राम कुंजर टमरगी हिंदो लूको तरफ आज महकमे बिजली खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत इलाकस मज लूक गोड़े बिजली हज ये गई किन परेशान मज हेन आमुत तत महकम तरफ स्मार्ट मीटर नस्ब करने हवाले कदम तुलना आमुत यमकिन लूक एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत जात मामलस कुन गज जोन दुनियन युद्ध जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। स्मार्ट मीटर लागने आमत गोड लाग हम मीटर तम लग सी गामस गोड लाग केबल ये लग सी गामस गरीब गुरबात दह जान रुपये 100 आज 200 रुपये कत ये टेन मजूर पे तुम कर अनकना बट गसान गट्स पे तत दिवान EPLS ती BPLS ती IYS ती गो यह मसल यप बिल कत अनो खाम आयाल सारे सारे रेरम महज गरीब कस तान गर नौकरी वाल बाकी कह सहारा कंस तहसीलदार साहब आन आज वोन अम दोपन ये एरिया लगा तेल लागो तह तम किन पच तहसीलदार साहबस नत हेकान पचित कह मुतमैन गए पे एहतजाज कोर्मुत अम मूजूब कि स्मार्ट मीटर लागान तो गोड गसन हेर पे टंगमरगस या कुंजर मेन अम मूजूब कि लागान रेरमस जुल्म कर ज्यादा पहनस बेस AYS कुन रेट दिवान APLS तो BPLS तो दिवान कुन रेट सारे वातान कुन बिला गरीबन हूं गरीबन तहसीलदार सब तान लागन ये गोड वो होर क्या करो हाँ इसलिए क्या है कि यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए हैं, अभी नहीं लगाए हैं, लाए हैं लगा। हम इनको कहते हैं कि पहले टंगमरग में लगाओ, कुंजर में लगाओ, टाउन एरिया में लगाओ, आपके बीच में क्यों ये इसी गांव को चुना है? क्यों ये पुरामन गांव है,
हम लड़ाकू नहीं हैं, हम लोग रोड पर नहीं आए, आप मजबूर हो गए। अचानक आए हैं, उन्होंने मोटर लगाना शुरू किया है। इलाके में कहीं नहीं, सिर्फ रेरम में। आप देखिए कहाँ बिजली चोरी होगी, देखो केबल लगे हैं सबको। अब इनको कहा आप लगाओ स्मार्ट मीटर, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर पहले लगाओ किसी इलाके को, या टंगमरग में लगाओ, कुंजर में लगाओ, टावन एरिया है। जब टावन में नहीं लगे अभी तक, रेरम क्यों चुना है? तहसीलदार साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब है, उन्होंने इंश्योरेंस दिया है कि नहीं लगे। लोगों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया हुआ था यहाँ पे। बेसिकली रेरम पहला विलेज है यहाँ पे जहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। हमने चीफ इंजीनियर साहब से भी बात की, तो वील टॉक टू देम। डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, तो उनको बोर्ड पे लेके हम कोई प्रॉपर डिसीजन लेंगे इसमें। फिलहाल लोगों के लिए क्या कहा गया? फिलहाल लोगों के लिए हमने यही इनको कहा है कि प्रोटेस्ट करने से निकलेगा नहीं कुछ, एंड वील डेफिनेटली लुक इनटू। जब भी प्लान होगा, प्रॉपर प्लानिंग से इंस्टॉल होंगे। कोई एरिया पहले नहीं पकड़ा जाएगा जहाँ पे इंस्टॉल होंगे, प्रॉपरली एज पर प्लान इंस्टॉल होंगे। टाउन हाल त्रालस में आज महकमे बिजली तरफ प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना तहत जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ महकम के जिम्मेदारों तो सैरपो शिरकत कर। अत मौके पर तकरीब मौजूद लूकन अत स्कीम हवाले जान दिन आई, तत मुस्तक लूकन हज रजिस्ट्रेशन ते अमल मज अन्न आमज। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जी स्कीम जमीनी सोतरस पे अमलावन सवाल यथन प्रोग्रामन हुंद साज करने युत जन लूक स्कीम हुंद आसानी सान फायदे तुलित हकन। हमारी त्राल टाउन के सारे बिजली के सारिफिन से यही गुजारिश रहेगी कि इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं, चूँकि ये स्कीम 2027 तक वैलिड है। इसका फ़ायदा हर उस सारिफ को मिल सकता है जो भी सारिफ बिजली इस्तेमाल करता है, और इस वक्त तो कोई ऐसा सारिफ है नहीं जो बिजली इस्तेमाल ना करे। चूँकि आज यहाँ स्मार्ट मीटरिंग कंप्लीट हुई है हमारे त्राल टाउन में, इसलिए चूँकि जो बिजली के खर्चात हैं ये सब लोगों का कंसर्न रहता है। तो इस स्कीम से हम बिजली के जो खर्चात हैं वो कम कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने अंदर सुना कि हमने इसका प्रोसीजर भी बताया कैसे बिजली बिल कम हो सकती है, और इवन बिजली बिल ज़ीरो भी कर सकते हैं हम, अगर हम बिजली का मुनसिफाना इस्तेमाल भी करें। और एक प्लांट हमारे पास ऐसा सोलर प्लांट हो जो लोकली ये पावर जनरेट करता हो, तो जितनी भी ये ज़्यादा जनरेशन इसकी होगी, जितना बड़ा प्लांट होगा उतना ज़्यादा बिजली की जनरेशन होगी और उतनी ही उसकी बिल कम होगी। में ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि ये स्कीम जो है इसका प्रोसीजर सारा ऑनलाइन है। बराबर उस कंज्यूमर के अप्लाई करने से बराबर सब्सिडी के क्रेडिट होने तक ये पूरा जो सिस्टम है ये ऑनलाइन है। इसलिए इसमें वो जो आम दिक्कतें हैं सब्सिडी हासिल करने में, वो इसमें कोई ऐसा कंसर्न है नहीं। टाउन हाल त्राल कपवारिस मज आज पुलिस तरफ नवें 3 क्रिमिनल लाहन हवाले जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कपवार मोहम्मद रऊफ रहमान, पुलिस जिम्मेदारों, महकमे तालीम हिंदो अहदारों तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों अलावा जीजत शहरियों तो नौजवानों शिरकत कर। अत मौके पर तकरीब मज मौजूद लूकन यमन कानून हवाले जान दिन आई, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीथन प्रोग्रामन हुन सांज रोज ब्रोह कुन जारी, युत जन लूकन अमे हवाले मुकम्मल जान दिन करने के लिए तैयार करें या उत्साहे करने के लिए तैयार किया हो। या इनका मेन मकसद ये है कि जो हमारे जो पिक्यूलियर जो हमारे ऑफेंसेस हैं उनको जो है रिजॉल्व करना है अपने जो है इंडियन जुडिशल सिस्टम के द्वारा, उनके तरीके से, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो अलग अलग कैटेगरीज़ के ऑफेंसेस हैं उनको जो है अलग अलग तरीके से और बेहतरीन स्ट्रेटजी के तरीके से काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ये मेन हाइलाइट्स हैं कुछ। उसके अलावा जो है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स किसी जो है ऑफेंस में, जैसे टेररिज्म रिलेटेड हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम है, और नए कुछ प्रोविजंस भी इंक्लूड कर दिए गए, जैसे कम्युनिटी सर्विस के रिलेटेड वो कुछ हमारे नए प्रोविजंस इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, जो एक बिल्कुल नॉवल स्टेप है एंड इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। इस चीज़ की वजह से एक थोड़ा सा एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच भी आ गया हमारे कवानीन में। आई होप एंड इंशाल्लाह हमारी जो है उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी ये होता रहेगा। और इसी ज़मन में हमने आज यहाँ पर ये जो है ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया था डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुपवारा में। इसका मेन मकसद ये था कि आम लोगों तक जो है इसकी जो है अवेयरनेस इनको बढ़ाई जाए और आम आदमी को जो है इससे फ़ायदा होना चाहिए और
उनको अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ का पता लगना चाहिए। ये जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं इनको दिसंबर 2023 में प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, इसकी तस्दीक हुई और 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। तो वी आर इम्प्लीमेंटिंग दीज लॉज ऑन ग्राउंड, लेकिन कुछ जो इसमें तगीर तब्दील हुआ है सेक्शंस में, जैसे 144 हम लगाते थे, अब 163 BNSS है। तो इसका मुशाहिदा करने के लिए हमने 3 नए लॉज के लिए जो अवेयरनेस कैंप हैं वो ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल किया है, जिसमें 24 ब्लॉक, 16 तहसील, 4 सब डिवीज़न और तमाम पुलिस अफसर जो हैं इनके नोडल अफसर हैं। ये आम लोगों को इसकी अवेयरनेस जनरेट करेंगे और उनको आगाह करेंगे कि औरतों के क्या हुकूक है, लोगों के क्या हुकूक है और कैसे हमारे जो लॉज थे पुराने वो हमारे मुखालिफ जाते थे, क्योंकि ये लॉज जो है। टाउन हाल हंदवारिस मज आज पुलिस तरफ नवें 3 क्रिमिनल लान हवाले जानकारी प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ पुलिस जिम्मेदारों तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदार अलावा जीजत शहरियों तो नौजवानों शिरकत कर। अत मौके पे तकरीब मौजूद लूकन यमन कानून हवाले जान दिन आई, तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीम कानून जमीनी सतरस पे अमलावनस हवाले जानकारी प्रोग्राम साज कर युद्ध जन आम लूकन अमे हवाले मुकम्मल जान दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हर ब्लॉक में ऐसे प्रोग्राम इनेकाद कराने का हुक्म बख्शा गया है। तो आज उसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे, जिसमें नंबरदारों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से, आशा वर्कर्स से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में न्यू क्रिमिनल लॉ से मुतल्लिक आगाही की गई और मेजर हाईलाइट्स जो हैं, ख़ुसूसी चीज़ें जो इसमें हैं, चाहे लेडीज़ से मुतल्लिक या वीकर सेक्शन से मुतल्लिक या पुलिस के रोल से मुतल्लिक या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो दीगर कड़ियाँ हैं उनसे मुतल्लिक जो उनका रोल होगा उसके मुतल्लिक ये इनको बाज़याब किया गया। तो ये प्रोग्राम आज से शुरू हो गई, तो ये सिलसिला अभी जारी रहेगा अगले कुछ महीनों में, जिसमें हर ब्लॉक में ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा और आवाम उन्नास को आगाह किया जाएगा। इसी तरह अलग तरीके से एजुकेशन के इदारों में भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे, जिनमें बच्चों को बिलखसूस स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स को इन नए लॉज के मुतालिक आगाही की जाएगी। यारपुर कोलगमिस में आज पहाड़ी कल्चर वेलफेयर फोरम तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ फोरम के लीडर अलाव पहाड़ी कल्चर सत वबस्त लूको शिरकत कर। अत मौके पे मरकजी सरकार शुक्रिया अदा करना आव, तब वन आमुत इथन प्रोग्रामन हिंद साज कर मकसद पहाड़ी लूकन हिंद मसले उजागर करने, युद्ध जन इंतजामिया तरफ यह मसले अंदरावनस हवाले संजीदा कदम तुलने। एनुअल डे है 12 तारीख को पिछले साल हमें एसटी का दर्जा अनायत हुआ था। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारा देरीना जो हमारी मांग थी, जो हम मार्जिनलाइज जो लोग थे, हमारी हक तलफी थी, वो हमारे हुकूक उन्होंने पूरे किए और हमें उन्होंने इज्जत दी इस चीज़ की कि आज हर फोरम में, हर दफ्तर में पहाड़ी की शिनाख्त हो रही है, पहाड़ी को एक्सेप्ट किया जा रहा है और इनको बहसियत कौम एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये पहला मकसद था शुक्रिया अदा करने का, उस एडमिनिस्ट्रेशन का, उस हुकूमत का जिन्होंने हमें ये हक दिया। हम पहाड़ी कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को हम स्ट्रेंथ नहीं दे पाए। लेकिन जब हमें एसटी का स्टेटस, स्पेशल स्टेटस मिला, तो उसके बाद हमारे में भी एक एनर्जी आई कि नहीं यार, हम कहीं पे मतलब गवर्नमेंट के खाते में हैं। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का तहे दिल से फिर एक बार शुक्रिया अदा करना, जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया, एसटी हमें प्रोड्यूस की, ताकि हमारे जो भी यूथ है, अनएम्प्लॉयड है, उनको कंपटीशन में आने का जनरल। उसके बाद हुकूमत वक्त का जिन्होंने ये हमें इसका अहल समझा, हमें अपना हक दिया। हमसे पहले हमारे भाई जो गुजर हैं, गद्दा, ब्राह्मण, सीपी, उनको भी मिला। तो हम कहते हैं कि किसी का हक भी जाया ना हो, यानी हमें जो हक मिला है, इसी तरह अगर ये जो मतलब हमारे दूसरे भाई हैं जो कहते हैं कि हमारा हक जाया हो गया,
हम कहते हैं, हुकूमत से हम दरख्वास्त करते हैं कि उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। हर किसी इंसान को जो दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया उसका हुकूमत में हिस्सा है, उसका कायनात में अल्लाह ताला ने उसको रिज़्क भी दिया है, उसका हिस्सा है। हर किसी को अपना हक मिलना चाहिए, और जब हर किसी को अपना हक मिलेगा तो झगड़ा खत्म। तो क्या आपको लग रहा है? गरवेट कलान खान साहब बडगमिस मज ये लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावनस हवाले प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम करने आमुत। तज आज हेल्थ सेंटर बापत जमीन फराहम करने वाले अयाल तरफ इमारत कुलफ करना आमुत। ये जन अमे अयाल तरफ वन आव जमीन फराहम करने विज तिमन सहित माकूल मुआवजे तो नौकरी फराहम करने वादे करने आमुत। ताहम आज ताम कह कदम तुलने आमुत यम किन तिम इमारत पे कुलफ करनस मजबूर सपद। यपर महकमे सेहत के जुम्मेदारों तरफ वन आमुत अत मामलस कुन यी खास जोन दिन युत जन अत अयालस इंसाफ फराहम करने यी। जमीन सो 2007 मज हेल्थ वालों दोपक दिमो मुआवजे बे दिमो ये मुलाजिम बच लागो मुलाजिम यमो न कर पे कथा न दुक मुआवजा तो न मुलाजमत पे 5-6 वरी गई मजबूर कोर्टस गसन खतर कोर्टन दित इन फैसले आज गई 2 वरी दपक इन सो सा फैसले इन दिव मुआवजा यमन दित मुआवजा तो न कहें दपक इन तुलो या तुलो बिल्डिंग थोद करू जमीन खाली इन 2007 मज निमो जमीन दोक दिमो मुलाजमत तो दिमो अड़हन मुआवजे न गई मुलाजमत न गो मुआवजे तम पे रूद इथे कनत आर्मी वार्मी बेहमा तथ कुलुप जमींदार सोन अम पे आव फारूक अहमद नाग तम शायद मेडिकल ऑफिसर खान साहब तम आज आव तम दित पूरे यकीन दोपन बह कर मसला हल 2018 मज आव सह दोपन बह कर मसला हल 2018 पे गो वुनुक तान कहें तम पे गई कोर्टस कोर्टन दित आप लोगों ने ये बात हम तक पहुंचाई है। तो यहाँ आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोग थे, इनके कुछ डिमांड जो मैं यही कहूँगा, मैंने रिसेंटली एज्यूम चार्ज किया है यहाँ इस ब्लॉक का, तो मैं ये फाइल देख के पढ़ के जो भी हमसे हो सकेगा हम अपने हायर अथॉरिटीज के साथ ये डिस्कस कर लेंगे कि मैटर क्या है, इनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं हम उन पे गौर करके आगे जो हायर अथॉरिटी। अमीराबाद त्राल के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमद युद्ध इलाक मज कदल तमीर करने हवाले कई फिर हुकामों तरफ यकीन दहनी करना आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम मुकामी लूक मुश्किल मज हन आय। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद कदल तमीर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन अमीराबाद तथ अंद पक इलाकन मज रोजन वाले लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने इन। रोजन अमीराबाद मे नाव मोहम्मद मकबूल मीर अस प्रॉब्लम यतन यथ कदलस तो अस गई लगभग 3 वरी यमन R&Bs गसन हे यह कदल दी तोनस ठीक कर हु तमो दुत वुनिक दोक अस थो प्लानस मज थो यह थो हु मगर वुनिक ताम दुत तमो तवज्जो टोटली। R&B किस महकमस करन गुजारिश कि अस गई 3 वरी सफर करन यह कदल यह दिन कहें यम सात यमो मैगडम त्रो तम दो तोन यह कदल हसा प्रॉब्लम ये बुक गसन आबस तो दोपक यह करो दस्ती हल वुनिक तान एप्लिकेशन त्र गसन यह सोन मसल हल कहें यमन मे पतमे लट फोन मे कर्मित एप्लिकेशन दिम दोपक आज पगह वन यम वरी वन वम वरी 3 वरी सपदो कि 3 वरियन सपदो न यह कदल प्यूज। शुपियनस मज आज अक निजी स्कूल तरफ मनशियात मुखालिफ रैली हूं साज कर आमुत यथ स्कूल इंतजामिया तो तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे तलब इलम अथन मज प्ले कार्ड हे पे मुख्तलिफ कस्म मनशियात मुखालिफ नार रकम करना आमच तब तलब इलमो तरफ वन आमुत इन रैलियन हंद साज कर सत आम लुकन मनशियात कन मुजर असरातन हवाले जान दिन युत जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपद।
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़िक्रा है, रेनबो इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट शोपियान से। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें ज़्यादा ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये कुछ हमारी बॉडी की जो फंक्शन है वो बंद कर जाते हैं, इस वजह से कि हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, हम हमारे बॉडी पार्ट्स फंक्शन करना बंद करते हैं, जैसे कि लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। हमें इनको अवॉइड करना चाहिए जितना भी हो। से नो ड्रग्स। यस सर, थैंक यू। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alifa. I'm from 6th standard and we are from Rainbow International Educational Institute. Today we are here to aware people about the drugs. Drugs are the silent killer that kills societies and individuals alike. Drugs not only harm the physical and mental health of an individual, but it also impacts on societal problems like crime and unemployment. So we have to say no to drugs and yes to that. Raise a voice, not a glass, or to a future free of alcohol. Thank you. तो नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामा